السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ازمش ٹی وی۔ تو دوستو، آج کا ایک نیا سفر ایک قدیم ایجاد سے شروع ہو کر جدید ایجادات تک آپ کو لے کر جائے گا، جہاں پہ ہم دنیا کے سفر کو مشکل ترین سفر سے آسان ترین سفر تک کیسے پہنچے۔ آئیے آج ہم ایک لمبا اور دلچسپ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کی داستان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پرانی ہے۔ انسان نے کب اور کیسے چلنا سیکھا، راستے کیسے تراشے اور کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی خواہش اس کی فطرت کا حصہ بنی، یہی ہماری آج کی کہانی ہے۔ ابتدائی زمانے میں انسان کے پاس کوئی گاڑی، کوئی جانور، کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ وہ جنگلوں میں رہتا، دریاؤں کے سائے تلے سو جاتا اور خوراک کے لیے شکار کرتا۔ اس دور میں سفر کا مطلب تھا دنوں بلکہ ہفتوں تک مسلسل چلتے رہنا۔ نہ کوئی نقشہ ہوتا، نہ کوئی پکی سڑک۔ انسان سورج، چاند، ستاروں کی سمت دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرتا۔ سفر اس وقت محض ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا۔ خوراک ڈھونڈنے کے لیے، پانی کی تلاش میں یا خطرے سے بچنے کے لیے قبیلے کے قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے اور یہ کوچ ہی ان کی زندگی کا معمول بن جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، انسان نے سیکھا کہ لکڑی کا ایک سیدھا ڈنڈا ہاتھ میں لینے سے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عصا نہ صرف چلنے میں سہارا دیتا بلکہ جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے ہتھیار کا بھی کام کرتا۔ یہ ایک چھوٹی سی ایجاد تھی مگر سفر کی تاریخ میں پہلا سنگ میل سمجھی جاتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب انسان نے جانوروں کو قابو میں کرنا سیکھا۔ سب سے پہلے کتا شکار اور حفاظت کے لیے ساتھ چلتا، مگر اصل انقلاب اس وقت آیا جب گھوڑا اور اونٹ قابو میں آئے۔ گھوڑا تیز دوڑ سکتا تھا اور اونٹ لمبے صحرا پار کر سکتا تھا۔ اب سفر پہلے سے زیادہ تیز اور طویل ہونے لگا۔ مصر تہذیب میں دریائے نیل پر لمبی کشتیوں کا استعمال شروع ہوا۔ لوگ دریا کے بہاؤ سے میلوں کا سفر طے کرتے۔ اسی طرح دریائے دجلہ، فرات کے کنارے رہنے والے لوگ لکڑی کی کشتیوں پر سفر کرتے۔ بر صغیر کی وادی سندھ کے لوگ بیل گاڑیاں استعمال کرنے لگے۔ ان گاڑیوں کے پہیے لکڑی کے ہوتے اور بیل آہستہ آہستہ کھینچ کر قافلے کو منزل تک پہنچاتے۔ چینی تہذیب میں ریشم کے قافلے شاہراہ ریشم پر چلتے۔ یہ راستہ سینکڑوں میل لمبا تھا اور مختلف ملکوں کو جوڑتا تھا۔ یہاں سے نہ صرف سامان بلکہ علم، کہانیاں اور تہذیبیں ایک دوسرے تک پہنچتی تھی۔ لیکن اس دور کا سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں ڈاکو، جنگلی جانور، طوفان اور بیماریاں مسافروں کا پیچھا کرتی تھیں۔ کوئی اسپتال یا پولیس نہ تھی۔ قافلے میں رہنا انسان کا بہت ضروری تھا، ورنہ تنہا انسان کا زندہ واپس آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہ ایجاد اتنی اہم تھی کہ اس نے نہ صرف سفر کو بدلا بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ پہیا سب سے پہلے میسوپوٹیما، موجودہ عراق میں تقریباً 3500 سال قبل مسیح استعمال ہوا۔ ایک ٹھوس گول ٹکڑا ہوتا تھا، اسے بیل گاڑیوں میں لگایا جاتا اور سامان یا لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے۔ پہیا آنے سے سفر کی رفتار بڑھ گئی، تھکن کم ہو گئی اور قافلے مزید سامان ساتھ لے جانے لگے۔ بیل گاڑیاں کسانوں کے لیے خزانے سے کم نہ تھیں۔ وہ اناج، لکڑی اور پانی دور دراز علاقوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اسی دوران جنگوں اور شاہی سفر کے لیے رتھ بنائے گئے۔ یہ ہلکی گاڑیاں تھیں جنہیں گھوڑے کھینچتے۔ بادشاہ اور سپہ سالار ان رتھوں پر بیٹھ کر فتوحات کے لیے نکلتے۔ زمین پر پہیے نے انقلاب برپا کیا، لیکن سمندر میں انسان نے بادبانی کشتیاں ایجاد کی۔ مصری، فینیکی اور یونانی قومیں سمندروں کے راستے دوسرے ملکوں تک پہنچنے لگے۔ لکڑی کی مضبوط کشتیاں جن پر بڑے بڑے لگے ہوتے ہوا کے زور سے چلتی تھی۔ یہ سفر مہینوں کا ہوتا مگر اس نے دنیا کو جوڑنے کا کام کیا۔ مثالہ، سونا، چاندی، کپڑا، سب کا تبادلہ ہونے لگا۔ آپ نے شاہراہ ریشم کا نام سنا؟ یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑی تجارتی شاہراہ تھی۔ چین سے لے کر وسط ایشیا، ایران، بر صغیر اور یورپ تک اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے چلتے۔ ہر قافلے کے ساتھ درجنوں لوگ، محافظ اور تجارت کا مال ہوتا۔ یہ سفر برسوں میں مکمل ہوتا لیکن دنیا کی معیشت اس پر چلتی۔ قرون وسطیٰ میں یورپ میں مضبوط سڑکیں بننے لگیں،
खास तौर पर रोमन सल्तनत ने सफर के लिए पक्की शाहराहें बनाई। आज भी कई जगह इन शाहराहों के आसार मौजूद हैं। इसी दौर में बड़ी बड़ी समुद्री मुहिमात शुरू हुई। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, वास्को ड गामा हिंदुस्तान पहुंचा और दुनिया के समुंदर नक्शों पर आने लगे। 18वीं सदी में दुनिया एक और इनकलाब से गुजरी। भाप का इंजन इजाद हुआ और सबसे पहले रेलगाड़ियां बनाई गई। अब जमीन पर सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आरामदेह हो गया। रेलगाड़ी के डब्बों में मुसाफिर बैठकर घंटों में सैकड़ों मील तय करने लगे। ये वक्त था जब शहरों का आपस में ताल्लुक मजबूत हुआ, तिजारत बढ़ी और दुनिया सिकुड़ने लगी। सनती इनकलाब के बाद इंसान का कदम एक और बड़े इनकलाब की तरफ बढ़ा, जिसमें उन्होंने मोटर गाड़ी की बुनियाद रखी। 19वीं सदी के आखिर में जर्मनी के इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी बनाई। इस गाड़ी के पहिए रबड़ के थे और इंजन आगे लगाता था। ये इजाद देखते ही देखते यूरोप और अमेरिका में मकबूल हो गई। जल्द ही सड़कों पर घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर गाड़ी दौड़ने लगी। अब सफर का मतलब था घंटों में मंजिल तक पहुंच जाना। रेलगाड़ी लंबे सफर के लिए थी, मगर मोटर गाड़ी ने शहरों और देहातों को जोड़ दिया। मोटर गाड़ी की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बसें बनी जो ज्यादा मुसाफिरों को ले जा सकती थी। ट्रकों ने सामान की तरसील आसान कर दी। तिजारत और रोजगार के मौका बढ़ गए। जमीन पर इंसान जितना तेज दौड़ने लगा, आसमान की तरफ देखकर इसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। सन 1903 में अमेरिकी भाइयों राइट ब्रदर्स ने पहली बार एक ऐसा जहाज उड़ाया जो इंजन से चलता था। ये जहाज सिर्फ चंद सेकंड हवा में रहा, मगर इंसान को आसमान का रास्ता दिखा गया। फिर क्या था, सिर्फ चंद दहाइयों में हवाई जहाज बड़े तेज और आरामदेह हो गए। अब वो सफर जो पहले महीनों में होता, सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल होने लगा। यूरोप से एशिया, अमेरिका से अफ्रीका, दुनिया के कोने कोने ऐसे थे जो एक दिन में तय न हो सकते थे, लेकिन जहाजों ने इन्हें आसान कर दिया। 19वीं और 20वीं सदी में समुद्री सफर पर एक तब्दीली आ गई। भाप के बड़े बड़े जहाज बने जो समुंदर पार हजारों मुसाफिर ले जा सकते थे। टाइटैनिक जैसा अजीम शान जहाज उस दौर की एक मिसाल था। अब समुंदर पर महीनों का सफर आरामदेह कमरों, खाने पीने की सहूलत और तफरीह के साथ होने लगा। 20वीं सदी के वस्त में दुनिया में तेज रफ्तार रेलगाड़ियां आ गईं। जापान की शिंकानसेन, फ्रांस की टीजीवी और बाद में चीन की बुलेट ट्रेन ने सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से शहर को जोड़ दिया। जमीन पर और आसमान में सफर के बाद इंसान की नजर खला में जा टिकी। 1957 में रूस ने पहला मसनूई सियारा स्पुतनिक खला में भेजा। 1961 में यूरी गागरिन नामी खिला नूर्द ने पहली बार जमीन के गिर्द चक्कर लगाया और फिर 1969 में अमेरिका के खिला नूर्द नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सफर था, एक ऐसी मंजिल जिसे सदियों तक ख्वाब समझा जाता था। आज के दौर में हवाई जहाज पहले से तेज, ट्रेनें पहले से आरामदेह और गाड़ियां पहले से महफूज हैं। इंसान अब सिर्फ जमीन और चांद तक नहीं बल्कि मरीख तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सफर अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक शौक, एक सियाहत और एक आलमी राब्ते का जरिया बन चुका है। जब हम कदीम दौर के सफर को देखते हैं, पहिया कश्ती, रेल, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज और खला की परवाज वजूद में आए तो इंसान की जिंदगियां बदल गई। अब दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां इंसान ना पहुंच सके। सफर ने सिर्फ फासले कम नहीं किए बल्कि दिलों को भी करीब कर दिया। एक बरे आजम के लोग दूसरे बरे आजम के लोगों से मिलने लगे, सकाफतें आपस में मिल गईं, जबानें एक दूसरे तक पहुंच गईं और नए नए ख्यालात ने जन्म लिया। शरह रेशम ने चीनी रेशम को यूरोप तक पहुंचाया। अरब खुशबुएं और मिसालें लेकर दुनिया के कोने कोने में गए। यूरोपी मुहिम जो नई जमीनें दरियाफ्त करके वहाँ के फल, सब्जियां और इल्म वापस लाए। ये सब कुछ सफर के बगैर मुमकिन न था। अगर आज हम पिज़्ज़ा इटली में पैदा होने के बावजूद पाकिस्तान में खा सकते हैं या पाकिस्तानी चाय लंदन में पी जा सकती है तो ये सब इसी सफर का करिश्मा है। दोस्तों, सफर ने मईशत को भी ताकत दी। जहाँ जहाँ सड़कें, रेल और हवाई अड्डे बने वहाँ तिजारत बढ़ी, रोजगार के मौके पैदा हुए और
शहरों की तरक्की तेज हो गई। सियाहत टूरिज्म आज दुनिया की सबसे बड़ी सनतों में शामिल है और करोड़ों लोग इससे रोजी कमाते हैं। याद रखिए, इल्म का फैलाव भी सफर के जरिए हुआ। कदीम मुसलमान साइंसदान बगदाद से इंदलस तक गए, यूरोपी मुहक्किकीन मशरक से सीखने आए और आज के साइंसदान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में उड़कर पहुंच जाते हैं। किताबें, इजाद और तालीम नजरियात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए और यूं इंसान ने तरक्की की सीढ़ी चढ़ी। मगर हर दौर के सफर के अपने चैलेंजेस भी हैं। कदीम जमाने में ये चैलेंज डाकू, जंगली जानवर और बीमारियां थे। आज ये चैलेंज ट्रैफिक का दबाव, आलूदगी, तेल की किल्लत और मौलियाती खतरात हैं। कल के सफर में ये चैलेंज खला में इंसानी बका और तवानाई के मसाइल होंगे। दोस्तों, आने वाले जमाने का सफर कितना शानदार हो सकता है, इसका अंदाजा आज की टेक्नोलॉजी से लगाया जा सकता है। खुद कार, खुद चलने वाली गाड़ियाँ, उड़ने वाली कारें, हाइपरलूप ट्रेनें और चांद या मरीख पर बस्तियां बनाने के मंसूबे, ये सब अब ख्वाब नहीं रहे, हकीकत का रूप धारने वाले हैं। सोचें, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप अपने घर की छत से उड़ने वाली कार में बैठकर आधे घंटे में दूसरे शहर पहुंच जाएं, या एक दिन के अंदर जमीन से मरीख तक का सफर मुमकिन हो जाए। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि हम आज से लाखों साल पहले के इंसान हैं। हमारे पास ना कपड़े हैं जैसे आज के हैं, ना घर, ना गाड़ियाँ। हम जंगलों में रहते हैं, फल तोड़कर खाते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। इसी दौर में सफर का मतलब था पैदल चलना। पहले इंसान अपने कबीले के साथ खुराक की तलाश में निकलता। जंगल, पहाड़, दरिया सब पैदल पार किए जाते। रास्ता दिखाने के लिए कोई साइन बोर्ड भी नहीं होता, बस सूरज की सम्मत, चांद की हालत और सितारों की रोशनी। हर सफर एक मुहिम था और हर मुहिम एक खतरा, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। मगर फिर भी इस जदीद सफर ने तहजीबों को मिलाया, तिजारत को बढ़ाया और इल्म को फैलाया। दुनिया के खाने, कपड़े, जबाने और मौसीकी एक दूसरे तक पहुंची। आज हम सुपर फास्ट ट्रेनों, उड़ने वाली कारों और खला के मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल को शायद आप अपने घरों की छत से सीधा मरीख की परवाज करने लगे। दोस्तों, सफर की ये कहानी लाखों साल फैली हुई है। पैदल चलने से खला की परवाज तक, लकड़ी के डंडे से सुपर फास्ट ट्रेन तक और बैलगाड़ी से उड़ती कार तक, ये सब इंसान की मेहनत, अकल और जुस्तजू का नतीजा है। सफर ने हमें सिखाया कि कोई फासला इतना बड़ा नहीं जिसे तय ना किया जा सके और कोई मंजिल इतनी दूर नहीं कि वहाँ पहुँचा ना जा सके। आइए इस तरक्की की कदर करें और आने वाले दौर के नए सफर के लिए तैयार रहें, क्योंकि इंसान का सफर अब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं और एज़मिश टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।